शुरू कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी इज होलिस्टिक स्टडी ऑफ मैन, मीनिंग दरवाइज दैट एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज मैन फ्रॉम biological, social. Anthropology studies man from biological, social, cultural, economic, and political point of view. These are the 5 dimensions on which anthropology studies man. Now I will discuss a scope of anthropology. A scope of anthropology. Within this scope of anthropology, we discuss these 5 aspects of man in detail. Anthropology studies these 5 aspects of man: biological, social, cultural, economic, and political. And let us say discuss all these aspects one by one. First, biological aspect of man. Anthropology studies, I write in short form, studies biological aspect of man through the study of अब हमें देखना है कि व्हाट आर द टॉपिक्स इन आवर सिलेबस, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इश्यूज इन आवर सिलेबस थ्रू द स्टडी ऑफ evolution, primate order, fossil man, genetics, effect of nutrition in breeding and hybridization. Now in the syllabus, the term inbreeding is replaced by consanguinity and hybridization is replaced by non-consanguinity, but these are the same things. So there are also some other topics, but first these are the basic topic of physical anthropology. We study these biological aspect: evolution, primate order, fossil man, genetics, effect of inbreeding. Broadly, we can define this topic in 2 categories. Some topic studies biological background of man, biological background of man, biological background of man. Here background means we study origin or evolution of man through 3 topics: evolution, primate order, and fossil man. Actually, this topic you have to study from evolutionary perspective. In evolution, we study theories of Lamarckism, Darwinism, and synthetic theory. Evolution tells you that man is not God man. Evolution tells that man is not
God made. But product of evolution. Product of evolutionary process. The dominant religious idea at that time in 18th and 19th century, why that man is made by God. Man is product of a special creation by God. But Lamarck for the first time questioned this religious notion and proposed that man is a evolutionary product. Darwin went ahead in proving with scientific evidence that evolution is a fact. He said that apes are our distant cousin. So Darwin established with evidence that all organism, including man, is evolutionary product, is product of natural selection. So under evolution, we study evolutionary theories of Lamarck, Lamarckism, Darwinism, and synthetic theory. This theory established a scientific origin of man. This theory rejected religious notion of man origin. Now under primate order we study 4 type of primate members. In primate order we study primate order we study 4 member. प्राइमेट ऑर्डर में हम 4 मेंबर का अध्ययन करते हैं. प्रोसिमियन, मंकी एंड एप. लेकिन हमारा फोकस जो है ये मैन है. मैन इज द हीरो ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. जस्ट लाइक इन फिल्म सेंट्रल फोकस इज ऑन हीरो. Just like in film, central focus is on hero and there are side heroes. These are prosimian, monkey, ape are side heroes. Our main focus is to understand man through them. Question is evolutionary question. These all 3 topics are related. Evolution, primate order, fossil man are related topics. ये रिलेटेड टॉपिक हैं और पढ़ने का तरीका इवोल्यूशनरी है, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है. ये तीनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है ना. इवोल्यूशन, प्राइमेट ऑर्डर एंड फॉसिल मैन आर इंटरकनेक्टेड बिकॉज द फोकस हियर इज टू अंडरस्टैंड द ऑरिजिन ऑफ मैन, इवोल्यूशन ऑफ मैन. द मेन क्वेश्चन इज जस्ट आई टोल्ड यू दैट डार्विन प्रपोज एंड दिस इज क्वेश्चन 1983. Apes are our distant cousin. Apes are IS 1983 का this is a question. Apes are our distant cousin. In this statement, it is clear that apes are our not descendant. Apes are our not ancestor, but they are cousins. This is a evolutionary question. है ना. we have to show that among these primate, so this is a
evolutionary question, and later on I show you that we shall discuss this topic, evolutionary question, and we discuss this topic in with evolutionary features. Our main focus is to show which among the primate is closest to man. Our purpose here is to show that among the prosimian, monkey, ape, which is closest to man. We will show that ape is closest to man. And prosimian, ape among the primate member, prosimian is distant to man and ape is closest to man. So our purpose is to show evolutionary relationship. Keep in mind this fact that we have to focus on evolutionary features because we have to prove evolutionary questions. In later classes I will show you what are the evolutionary feature. You should not bother about too much feature, especially in this topic. We have to concentrate on only 3 features: erect posture, dentition and brain. These are evolutionary feature. Evolutionary feature. So limit on the feature that you have to study. Anthropology is not biology. There is no need of studying too much biological feature, because especially in these 3 topic, evolution, primate order and fossil man, our concern is to show evolutionary relationship, and we have to prove these evolutionary relationship in term of 3 features, evolutionary features. And what are the evolutionary feature? Erect posture, dentition and brain. There are more than 200, there are 208 biological feature, but there is no need of memorizing all these 208 features. Our especially for these 3 topic, we have to discuss this erect posture, changes in erect posture, dentition and brain, and I will discuss it later on. Erect posture means prosimian and monkey do not erect walk. They do not stand like this. They do not walk in erect manner. Their hand is involved in walking. But it is man who stood erect, and after becoming erect, his hand became free, and because of free hands, he made tool. So evolutionary development began with erect posture. अगर हम खड़ा नहीं होते, हाथ चलने से मुक्त नहीं होता और औजार नहीं बना पाते, तो खड़ा होना एक बहुत डिसाइसिव इवोल्यूशनरी परिवर्तन है. इसलिए आप क्वेश्चन, मेरा सेशन है कि आप आईएएस का पहले का क्वेश्चन ले लें, क्योंकि पढ़ाई में आगे जैसे से बढ़ेगा क्लास, हम क्वेश्चन रिलेटेड बात करेंगे. देखो ये क्वेश्चन इरेक्ट पोस्चर पर क्वेश्चन बहुत पहले से आते रहा है. आप अगर क्वेश्चन पुराना भी होगा तो 65, 68 से 1968, 81, और फिर इधर आएंगे तो 2011 में भी, 2016 में भी ये आया है कि जब हम खड़ा हुए तो क्या क्या परिवर्तन आया खड़ा होने में. डिस्कस द पॉलिटिकल चेंजेज इन मैन due to assumption of erect posture. This is a very important question in UPSC, because खड़ा होना कोई मामूली परिवर्तन नहीं था. खड़ा होना डिसाइसिव परिवर्तन था. ये मंकी, एप, प्रोसिमियन, मंकी और एप ये खड़ा होकर नहीं चल पाते हैं. देयर हैंड्स आर इन्वॉल्व इन वॉकिंग, in climbing trees, but it is man who stood erect. I will discuss this in the study of fossil
कैसे कैसे अभी हम फोसिल पर आ रहे हैं और उसमें थोड़ा हम दिखलाएंगे। तो डोंट बायोलॉजाइज एंथ्रोपोलॉजी, especially for these three topic you should focus on only three features: erect posture, dentition, and there is a question on dentition in 1986 and also changes in the skull in 2009. So actually these are evolutionary feature. खड़ा होना बहुत डिसाइसिव परिवर्तन था। खड़ा जब हो चुके तो मांस को तो औजार बनाया और औजार बनने के बाद मांस को तोड़ के खाने लगे, दांत का साइज कम हुआ, जबड़ा का साइज कम हुआ। तो खड़ा होने के बाद जो ही परिवर्तन आया वो हमारे चेहरे और इससे हुआ। हम ही आके बताएंगे आपको कब हम लोग फोसिल के दौरान खड़ा हो गए। अब आइए थर्ड टॉपिक। जो थर्ड टॉपिक है इवोल्यूशनरी टॉपिक इज फोसिल मैन। फोसिल में पहले तो ये जान ले कि फोसिल क्या है। बहुत सारे बच्चे फोसिल से डरते हैं, फोसिल में पता नहीं क्या पढ़ना है। आपको हम सिंपल वे में आपको ये बता दें कि फोसिल्स आर आवर एंसेस्टर्स। फोसिल्स ये हमारे एंसेस्टर्स हैं। आप इसको पहले सिंपल वे में समझ ले। यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट इन सिंपल वे। Fossils are, suppose Mr. Mohan is here. Mohan father, his father, grandfather, and Cro-Magnon, Neanderthal, होमो इरेक्टस और अस्ट्रालोपिथेकस, अस्टाइलो, and then Ramapithecus. Now you can say who is closest to Mr. Mohan. Again I give you some more space. है ना, मिस्टर मोहन क्लोजेस्ट रिलेटिव इज हिज फादर एंड देयर आफ्टर हिज ग्रैंडफादर एंड देयर आफ्टर हिज Cro-Magnon is also Magnon, Neanderthal, then Homo erectus, then Australopithecus, and lastly Ramapithecus. So you can say that closest relative of Mr. Mohan is his father, his grandfather. They are modern human, and even Cro-Magnon is modern man. But Mr. Mohan closest is Cro-Magnon, and thereafter these are the fossils man. ये fossils man यही है. Among the fossils, Neanderthal is closer to us, then Homo erectus, Australopithecus, and Ramapithecus. So in fossil, up now I arrange this as such: ape-like ancestor, not ape but ape-like ancestor से हम इवॉल्व किए. हमारा पहला पूर्वज है रामापिथेकस. शॉर्ट में आई एम राइटिंग इट रामा. देन इट इवॉल्व इनटू Australopithecus. Then it evolved into Homo erectus. And erectus. It evolved into Neanderthal.
and finally it evolved into modern man. So these are the evolutionary development. Evolutionary process है ना. evolutionary process from ape like ancestor we evolved. Our first ancestor is Ramapithecus. Actually Ramapithecus fossil was found from Shivalik hills, Himalaya range, and after Lord Rama it was named Ramapithecus. Ramapithecus evolved into Australopithecus. Australopithecus evolved into Homo erectus. Homo means tool maker. Homo, the word homo indicate homo means tool maker. टूल मेकर. और टूल अभी हमने बताया कि टूल मेकर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ. आप देखो होमो वर्ड डज नॉट कम इन Ramapithecus, Australopithecus. This means Ramapithecus, Australopithecus are not tool maker. They could not stood erect. They could not stood erect as be stood, as be stand. Ramapithecus and they are not perfect bipedal. Homo erectus, the term Homo erect, मतलब Homo erectus was first fossil to walk perfectly erect, and because he stood erect, he made tool, and because he made tool, he started taking breaking meat into pieces. As a result, size of teeth and jaw, होमो नियंडरथल में, नियंडरथल या इसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ, धड़ हम लोग का यही कंप्लीट हो गया. यहाँ तक ही हम लोग का ये जो पोस्चर है यहाँ से नीचे तक, दैट गॉट कंप्लीटेड ड्यूरिंग होमो इरेक्टस, एंड देयर आफ्टर कोई चेंज नहीं आया. हमारा जो स्केलेटन फीचर है दैट बिकम कंप्लीट ड्यूरिंग होमो इरेक्टस एंड देयर आफ्टर देयर इज नो चेंज. तो इवोल्यूशनरी फीचर तीन ही हैं. इरेक्ट पोस्चर, अब जैसे जैसे हम आगे बताएंगे आपको कि तीन ट्रेंड है. आप इन द सिलेबस 1.5 टॉपिक is mentioned trend of evolution. There are three trend of evolution that I have discussed. The first trend is trend toward erect posture, है ना. Trend of evolution, trend of evolution, three trend of evolution. First trend of evolution is erect posture. और जब इरेक्ट पोस्चर हो गया तो दूसरा ट्रेंड है रिडक्शन इन साइज ऑफ टीथ. और तीसरा ट्रेंड है इंक्रीज इन ब्रेन साइज. दी ज्यादा अभी हमने बताया था आपको, देर आर थ्री ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन: इरेक्ट पोस्चर, डेंटिशन एंड ब्रेन, दांत और ये जो ब्रेन का स्कल का साइज है. सो जैसे जैसे आप इधर से इधर आएंगे, देखो यू थिंक मोर. यूपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू बी ए गुड थिंकर, दैट ए गुड लर्नर. ऑलवेज थिंक, आप सोचें. ये रोट लर्निंग का टेस्ट नहीं है यूपीएससी. आपको फोसिल मैंने बहुत कुछ बता दिया, आप इतना ही से बहुत कुछ समझ सकते हो. रामापिथेकस से जैसे आप इधर आएंगे, ट्रेंड इरेक्ट पोस्चर का है. होमो इरेक्टस कंप्लीटली खड़ा हो गया, खड़ा होने से उसका और हाथ फ्री हो गया, हाथ फ्री होने से उसका औजार बनने लगा. तो जैसे जैसे आप रामापिथेकस से ऑस्ट्रालोपिथेकस की ओर जाएंगे, यानी ऑस्ट्रालोपिथेकस का दांत का साइज क्या होगा, रामा के अपेक्षा छोटा होगा. ऑस्ट्रालोपिथेकस से छोटा होगा किसका दांत, होमो इरेक्टस का होगा. जैसे से इधर से आएंगे,
दांत का साइज छोटा होता जाएगा, ब्रेन का साइज बड़ा होते जाएगा, ब्रेन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे जैसे आप इधर आएंगे ब्रेन का साइज बड़ा होगा। हालांकि हम कुछ रिसेप्शन में आगे बताएंगे आपको, निंडरथल का साइज ब्रेन का ज्यादा था हम लोग से, खैर वो हम आके बताएंगे आपको, लेकिन दीज आर द ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन। तो इस तरह से हमने बताया कि तीन जो टॉपिक है इवोल्यूशन में का, है ना, इवोल्यूशन, प्राइमेट ऑर्डर और फॉसिल मैन, ये तीन टॉपिक आर इंटरकनेक्टेड है एंड वी हैव टू स्टडी दिस टॉपिक from evolutionary point of view. Question come in evolutionary perspective. Now I come on other topic. मैंने इसलिए इस टॉपिक को बता दिया कि बहुत सारे लड़के ये डरते हैं इस टॉपिक से, लेकिन यही टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी में स्कोरिंग टॉपिक है। आप इसे देखिए, ये बायोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ मैन, ये तीन टॉपिक में हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन, प्राइमेट ऑर्डर, फोसिल्स। और जो तीन टॉपिक है, आई हैव यूज द टर्म बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मीन्स बी स्टडी। ये तीन टॉपिक है आपको, इवोल्यूशन, प्राइमेट ऑर्डर, प्राइमेट ऑर्डर और फॉसिल मैन। These three topics give idea of biological background of man, origin of man, कैसे हम आए। गॉड मेड हम नहीं हैं, ह्यूमन आर नॉट गॉड मेड बट प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशनरी थ्योरी प्रपोज दिस फैक्ट। प्राइमेट ऑर्डर से दैट वी आर क्लोजेस्ट टू एप एंड फॉसिल से दैट वी हैव passed through Ramapithecus, Australopithecus, Homo erectus. I discussed this in several times, and most of the question I discuss in the class. Later on I will, when I come to the topic, I will discuss all things in the class questions. चलिए, सेकेंड है, अदर जो टॉपिक्स हैं वो है बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, और इसके लिए ये टॉपिक हैं आपको जेनेटिक्स, जेनेटिक इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिशन, कंsanguinity एंड नॉन कंsanguinity। अदर जो टॉपिक्स हैं जेनेटिक्स, इन जेनेटिक्स वी स्टडी हाउ कैरेक्टर पासेस फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, कैसे एक ही परिवार के बच्चों में समानता होती है, क्यों होती है, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं कि एक ही माँ बाप के बच्चे में समानता क्यों होती है। वाई चिल्ड्रन रिजेंबल देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं, दे रिजेंबल देयर पेरेंट बिकॉज, है ना, दे शेयर द जीन ऑफ द पेरेंट। तो इस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ जीन कैसे होता है, कैसे कैरेक्टर पास ऑन करता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो जेनेटिक एक्सप्लेन करता है वेरिएशन, आज हम सबों में जो अंतर है, एवरीवन डिफर फ्रॉम अदर्स इन देयर बायोलॉजिकल फीचर, क्यों अंतर है, we study these under the topic of genetics. Effect of nutrition. Nutrition is very important factor जो हमारे हाइट, वेट, वजन इस सब को प्रभावित करता है। तो न्यूट्रिशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली इन कंट्री लाइक इंडिया वेयर more than 1/3 population are below poverty line, वहाँ न्यूट्रिशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम, और उसके चलते बच्चे का
अंडर डेवलपमेंट होता है, स्टंटिंग हो जाता है, सही ग्रोथ नहीं हो पाता है उनका। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कंसंग्यूनिटी एंड नॉन कंसंग्यूनिटी। कंसंग्यूनिटी का मतलब ये है, सिंपल वे में आप समझें, हमारे यहाँ कुछ ट्राइबल में दे ये ट्रेडिशन ऑफ मैरिंग मदर्स ब्रदर्स डॉटर, मतलब मामा की बेटी से विवाह करते हैं। हमारे यहाँ ट्राइबल में, बहुत सारे ट्राइबल में वधु मूल का प्रचलन होता है। वहाँ लड़कियों को वधु मूल दिया जाता है। तो कुछ पैट्रियल ट्राइबल में भी ये प्रथा है, प्रचलन में है। और कुछ मैट्रियल जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल हैं, गारो, खासी, जैंतिया, गारो, खासी, जैंतिया आर द ट्राइबल ऑफ मेघालय। और इन ट्राइबल्स में दे ये कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मदर्स ब्रदर्स डॉटर। अब जो ब्लड रिलेटेड मैरिजेज होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, मुस्लिम समाजों में भी पैरेलल कजिन मैरिज होता है ना, मैरिंग फादर्स ब्रदर्स डॉटर्स। तो फादर्स ब्रदर्स डॉटर जो मैरिज करते हैं तो कल्चर पे है। उधर से हिंदू में साउथ इंडिया में अंकल निस मैरिजेज पॉपुलर माना है, पॉपुलर मैरिज फॉर्म है। अंकल निस मैरिजेज इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैरिज in South India. So these close relative, biologically close relative marriages are harmful genetically. जब लोग अपने नजदीकी रिलेटिव से शादी करते हैं तो उनमें उनका जो रिसेसिव जीन होता है हार्मफुल, वो एक जगह चलाता है। एंड बिकॉज ऑफ होमोजाइगोसिटी ऑफ रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन जो हार्मफुल होते हैं, वो रिसेसिव जीन अगर होमोजाइगस सिस्टम में आ जाते हैं तो दे शो देयर हार्मफुल इफेक्ट। इसलिए क्लोज रिलेटिव जो मैरिजेज होता है वो ज़्यादा नुकसानदेहक होता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में, आपको इस पर क्वेश्चन भी आता है कि हार्मफुल है लेकिन कुछ परिस्थितियों में हार्मफुल नहीं भी है, वो सारी चीज़ हम डिटेल में बाद में कराएंगे एज वी कल कम ऑन दिस टॉपिक। देखिए ये दो टॉपिक, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अगर दोनों को हम इस तरह समझें कि ये दोनों चीज अगर हम पढ़ लेते हैं तो एक तरह से ये बायोलॉजिकल बायोडाटा है। ये बायोडाटा ऑफ बायोलॉजिकल बायोडाटा, बायोलॉजिकल बायोडाटा ऑफ मैनकाइंड। देखिए आपको सिलेबस को सही तरह समझना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सिलेबस। सिलेबस के जो टॉपिक हैं वो क्यों हैं, किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों दिया गया है सिलेबस में। एक्चुअली ये जो 6 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, और ये जो 6 टॉपिक, ये आपको 3 टॉपिक बायोलॉजिकल बैकग्राउंड ऑफ मैन बताता है कि मैन कैसे इवॉल्व किया, कैसे वो ऑरिजिनेट किया, उसके क्लोज रिलेटिव कौन है, अगर इवॉल्व किया है तो इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से कौन क्लोजेस्ट हैं और कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, इसका स्टडी बी स्टडी इन इवोल्यूशन प्राइमेट और फोसिल्स में। लेकिन जब हम इवॉल्व कर गए, आज जो हम मानव हैं, हम में क्यों अंतर है, अंतर के कारण क्या हैं, इसमें हम एक रेस टॉपिक भी पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक में। रेस भी ह्यूमन वेरिएशन को दर्शाता है। तो ये सारे टॉपिक हम पढ़ते हैं टू अंडरस्टैंड वेरिएशन इन मैनकाइंड। देखिए, लेकिन अगर हम ये दोनों को मिला दें, बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ये दोनों एक तरह से बायोलॉजिकल बायोडाटा ऑफ मैन। देखिए बायोडाटा, आप इंजीनियरिंग करने के बाद प्लेसमेंट के लिए आप कंपनी में बायोडाटा देते हैं। बायोडाटा में क्या होता है, आपका नाम, नेम, एड्रेस, फादर नेम, तो दीज आर इशू जो हैं वो बायोलॉजिकल तरह से आपका बैकग्राउंड है। व्हाट इज योर नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, ये सब आपका बैकग्राउंड बताता है। दीज ऑल थिंग टेल योर बैकग्राउंड एंड देयर आफ्टर आप मेंशन करते हैं कि हम बीटेक हैं, आई हैव सच एंड सच एक्सपीरियंस, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है। तो इन दिस वे
we study biological background and biological characteristic. In this way, under biodata we study two things, background and characteristic. So these 6 topics tell you about biological background, biological biodata of not a single man, not a single person, but of whole mankind. एंथोपोलॉजी एक तरह से स्टडी ऑफ मैन अक्रॉस द वर्ल्ड है, एक ग्लोबल सब्जेक्ट, नेचर का सब्जेक्ट है. एंथोपोलॉजी ग्लोबल इन नेचर, हम केवल पर्टिकुलर रीजन के लोग को नहीं पढ़ते. कल मैंने बताया था एंथोपोलॉजी स्टडीज पीपुल नॉट ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन बट पीपुल ऑफ द होल वर्ल्ड. तो एंथोपोलॉजी का जो नेचर है वो ग्लोबल है. इट्स सब्जेक्ट मैटर कवर पीपुल ऑफ द वर्ल्ड. तो हम मैनकाइंड का बायोडाटा पढ़ते हैं. एंथोपोलॉजी पढ़ने से आपको एहसास होगा कि हम दुनिया के लोग एक हैं. ये सब एहसास नहीं, बल्कि गोल एंथोपोलॉजी का ये बताना है कि मैनकाइंड इज वन. सो एंथोपोलॉजी ग्लोबल इन नेचर. और ये आप ये समझ लें कि ये टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है. ये हमारा बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का अध्ययन करता है. और ये तरह से यह मानव जाति का, मैनकाइंड का बायोलॉजिकल बायोडाटा है. नाउ there are other some topic also, but in topic 12 in UPSC syllabus, application of biological principle, application of biological principle for betterment of mankind. एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है. देखिए, हम एंथोपोलॉजी का कंसर्न बायोलॉजिकल मैकेनिज्म पर फोकस करना नहीं है. आवर कंसर्न इज नॉट हैव ए स्पेशलाइज्ड स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल इश्यूज. हम लोग को हार्ट, किडनी, ये सब चीजें नहीं पढ़ना है. एंथोपोलॉजी नॉट बायोलॉजी. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एंथोपोलॉजी इज नॉट बायोलॉजी. आपके टीचर एंथोपोलॉजिस्ट होते हैं, ना कि बायोलॉजिस्ट होते हैं. एडवांटेज आपका है कि अगर आप, जैसे आप एवोल्यूशनरी थियरी लिखेंगे, लैमार्क, डार्विन, अगर जूलॉजी में यू राइट दैट आंसर, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. एग्जामिनर जूलॉजी, एक जूलॉजी टीचर के लिए क्वेश्चन ऑन लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म इज वेरी सिंपल, एंड इफ यू राइट आंसर ऑन दैट यू गेट पुअर मार्क्स देयर. लेकिन वही चीजें अगर आप एंथोपोलॉजी में लिखते हैं, यू हैव ए ग्रेट एडवांटेज. यू विल हैव 70% ऑफ मार्क्स इन दीज बायोलॉजिकल इश्यूज बिकॉज दे आर ऑब्जेक्टिव फैक्ट इन एंथोपोलॉजी. तो ये एडवांटेज है. जो चीजें बायोलॉजी के लिए सिंपल है, जैसे वहां हार्ट, किडनी, ये सब का डायग्राम बना करके अगर लिखेंगे तब हुआ कि ये स्टडीड बायोलॉजी और बायोलॉजिकल नॉलेज आपको है. अगर आप केवल इवोल्यूशनरी थ्योरी लिखेंगे तो यह तो सब्जेक्ट का जूलॉजी के लिए ये भी सी है. लेकिन जूलॉजी के लिए जो सिंपल टॉपिक है, नॉन सीरियस टॉपिक है, एंथोपोलॉजी के लिए वो बहुत स्कोरिंग टॉपिक है. दिस इज द एडवांटेज. बायोलॉजिकल टॉपिक से डरना नहीं है. बायोलॉजिकल टॉपिक आर वेरी स्कोरिंग. यही आपको नंबर देगा, नंबर दिलाएगा और आप सिलेक्ट होंगे. ऑलवेज केवल पढ़ने का पर्सपेक्टिव सही होना चाहिए. दीज आर नॉट डिफिकल्ट टॉपिक. फोसिल को हम आपको क्लास में ही सारे बैक आईएएस के क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं जो शायद किताब पढ़ के भी थक जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा. लेकिन उस चीज को अगर सही पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसका आंसर क्लास में ही सारे क्वेश्चन का हम करा देंगे. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ आई कम एंड, है ना, एप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एप्लीकेशन, मैं कहा कि एंथोपोलॉजी में जो बायोलॉजिकल इश्यू हम पढ़ते हैं उसका हमें स्पेशलाइज स्टडी नहीं करना है, बल्कि हमारा उद्देश्य बायोलॉजिकल इश्यू पढ़ने का मानव के बेटरमेंट के लिए करना है. एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल फॉर बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड. अप्लाइड एस्पेक्ट में क्वेश्चन आते हैं. आपको जूलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं जानना है ज्यादा. आप एक भी क्वेश्चन आप दिखलाओ, आप क्वेश्चन ले लो. मैं तो 62 से लेके अभी तक का क्वेश्चन आपको क्लास में डिस्कस करता हूं
और कहीं भी आपको जूलॉजिकल डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन आप दिखला दो, एक भी क्वेश्चन उस तरह से नहीं आता है। लेकिन बहुत सारे बायोलॉजी के टीचर एंथ्रोपोलॉजी में इंक्लूड कर गए हैं और वो ज्यादा बच्चों को ज्यादा परेशानी में डालते हैं। इसलिए आपको स्पेशलाइज, यू डोंट बायोलॉजाइज एंथ्रोपोलॉजी, ये बराबर ध्यान रखिएगा। हम बायोलॉजी में भी कल्चर की बात करेंगे और अगर बायोलॉजिकल इश्यू में कल्चर की बात करेंगे तो मार्क्स ज्यादा आएगा, बल्कि ये करना जरूरी भी है। आप देखिए, अभी आपको हमने ये सब टॉपिक डिस्कस किया, अब आपके एक टॉपिक में है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड कल्चरल इवोल्यूशन डायमेंशन। जो इवोल्यूशन है ह्यूमन, लेकिन फर्क है यहां, अब आपके सिलेबस में अभी ह्यूमन इवोल्यूशन एक टॉपिक आपका है अलग से, ह्यूमन इवोल्यूशन। अभी हमने बात की लामार्क, डार्विन, ये जूलॉजी में ही पढ़ना है, एंथ्रोपोलॉजी में ही पढ़ना है। लेकिन आपके सिलेबस में ह्यूमन इवोल्यूशन वर्ड है। इवोल्यूशन एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। इवोल्यूशन अगर हम केवल टर्म लिखते हैं इवोल्यूशन, ये बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। जैसे एनिमल्स में जो बायोलॉजिकल फिनोमेना है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या फर्क है ह्यूमन में? ह्यूमन और एनिमल में फर्क यही है, ह्यूमन या है ना, ह्यूमन और एनिमल में फर्क यही है कि मैन हैज टूल्स, ह्यूमन हैव टूल्स, एनिमल नो टूल। जब बायोलॉजिकल डेवलप, जब इन्वायरमेंटल चेंज आता है, जैसे अभी नई बीमारी कोविड आया, तो एज ए ह्यूमन अभी वैक्सीनेशन काम शुरू हो रहा है, तो बी डेवलप बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, हम मेडिसिन डेवलप करते हैं, हम उपाय डेवलप करते हैं। जानवरों में दे डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ टूल्स, इसलिए उसमें इवोल्यूशन, इन एनिमल इवोल्यूशन इज जस्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। लेकिन जब हम मैन की बात करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ह्यूमन इवोल्यूशन इज ए बायोकल्चरल प्रोसेस। ह्यूमन इवोल्यूशन में क्या है, बायोलॉजिकल डायमेंशन भी है, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल डायमेंशन भी है। अभी आप कोविड में ही देखें, ठीक है, इसका कॉजेशन वायरस है, बायोलॉजिकल है, लेकिन इसका उपाय कल्चरल है, सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड हाइजीन, ये सारी चीजें क्या है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है। तो इवोल्यूशन ह्यूमन केस में बायोलॉजिकल भी है और कल्चरल भी है। जैसे अभी हमने बताया, ह्यूमन इवोल्यूशन इज नॉट सिंपल ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। और आपको यहीं से कल्चरल इवोल्यूशन की बात जब आएगी, तो आपको आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी जो आपको ये मेजर पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, ये आपके सिलेबस में 1.8 फर्स्ट पेपर में, और ये सेकेंड पेपर में 1.1 में, सेकेंड पेपर में आपको आर्कियोलॉजी का पोर्शन है। ये क्या बताता है, ये कल्चरल इवोल्यूशन, आर्कियोलॉजी प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन। देखिए, स्कोरिंग पार्ट जो आपका सिलेबस में है, यही पार्ट है। एक आर्कियोलॉजी का जो टॉपिक्स हैं, वो आपको कल्चरल एविडेंस का एविडेंस है, जो कि हम बहुत डिटेल में बताएंगे आपको। यही स्कोरिंग पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का, फिजिकल और आर्कियोलॉजिकल, ये दोनों मिला करके आपको ये 500 में ये आपको 200-250 का 200 का पोर्शन ये कवर करता है। और इसमें मार्क्स जो है वो 70 to 80% आ सकता है। जैसे अगर एंथ्रोपोलॉजी में आप मैरिज, फैमिली, किनशिप या रिलीजन, ये सब में आपको नंबर जो है ये 50 to 60% के अंदर ही आएगा।
इसमें जो और ये सब जनरल इश्यूज हैं, लड़के सभी लिख देते हैं, अधिकांश लड़के इससे लिख देंगे। और ये तरह से इसमें जनरल नंबर आपको कंपीट करना है, जनरल नंबर ला के क्वालिफाई नहीं करना है। अगर कोई 60 लाता है तो आपको 61 लाना होगा। तो इस कंपटीशन में आपको डिसाइड करना होगा कि यू हैव टू डू दिस स्कोरिंग टॉपिक। आपको फोकस जो करना है वो ज़्यादा इन टॉपिक पर करना है जो अभी हमने डिस्कस किया। आर्कियोलॉजी को अभी हम कम डिस्कस कर रहे हैं, हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको भी आपको डिटेलिंग करेंगे। तो एक तरह से बहुत सारे लड़के सोचते हैं क्या है एंथ्रोपोलॉजी, मेरे मैरिज फैमिली किनशिप में एक आध दो डिफिनेशन याद कर लो और लिख दो, कोई नंबर आ जाता है, लेकिन वो केवल चांस गिनेंगे। अगर ये सब स्कोरिंग टॉपिक को इग्नोर करेंगे तो सिंपली दे विल काउंट देयर चांसेस कि दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अगर आपको compete करना है तो यू हैव टू डेवलप ए स्ट्रेटजी विच आर द स्कोरिंग टॉपिक, उसकी मास्टरी करना बहुत जरूरी है। हाँ, शुरू में अगर आपको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट है, नो डाउट। अगर उसके पर्सपेक्टिव्स नहीं पढ़ेंगे तो नो डाउट वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर सही पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे आप तो वो टॉपिक, वो सारे क्वेश्चन आई डिस्कस इन द क्लास। वो क्वेश्चन हम ये नहीं कि आप घर से लिख के लाना, आपको बहुत दिक्कत होगी लिखने में उसको। हालांकि बायोलॉजिकल टॉपिक से में फैक्ट एक ही जगह रहता है, आप उसका नोट बना सकते हैं, बट देयर आर सम क्वेश्चन जिसमें आप निश्चित रूप से फंसेंगे। ऑब्जेक्टिव है लेकिन उसमें भी अरेंजमेंट ऑफ फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई कम ऑन सोशल एस्पेक्ट। हमने ज्यादा बायोलॉजिकल इशू क्लियर किया क्योंकि बहुत सारे लड़के नॉन बायोलॉजी के होते हैं और वो समझते हैं कि पता नहीं क्या पढ़ना है इसमें, तो उनको हम एश्योरेंस देना चाहते हैं। आई लाइक टू एश्योर देम दैट इफ यू स्टडी दिस टॉपिक in a proper perspective, these topic are very scoring and not difficult। चूंकि आपको ये सारे का क्वेश्चन हम क्लास में ही कराएंगे, ये नहीं किया आपको वदर करना है, वो सारे का आंसर, सारे क्वेश्चन का वो आंसर हम क्लास में ही कराएंगे सारे टॉपिक का। इसलिए टेस्ट सीरीज ऐसा कुछ नहीं है यहाँ कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, टेस्ट सीरीज लिखना, ये सब केवल बच्चों को भुलावा देना है। टेस्ट सीरीज ऐसा, दीज आर साइंटिफिक टॉपिक। इसे एक बार सही पर्सपेक्टिव में पढ़ा दिया जाए तो देयर इज नो नीड ऑफ टेस्ट सीरीज। नाउ आई कम ऑन सोशल एस्पेक्ट ऑफ मैन। सोशल एस्पेक्ट अभी मैंने बात किया एस्पेक्ट ऑफ मैन। अंडर दिस टॉपिक बी स्टडी सोशल इश्यूज ऑफ मैन सच एज, आपके सिलेबस से अगर हम शुरू करें तो इसमें ग्रुप है, इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, और भी जैसे मैरिज फैमिली किनशिप, बैंड है, ट्राइब है, बैंड ट्राइब, दे आर रिलेटिवली इजी बट जनरल टॉपिक। चूंकि वी आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक, हम सभी परिवार में रहते हैं, मैरिज करते हैं, तो दीज आर जनरल सोशल इश्यूज हैं। आप यू आर अवेयर ऑफ दिस टॉपिक और ये आपको इजी लगता है, ये टॉपिक इजी हैं। लेकिन इसमें जो आपको सोसाइटीज के पढ़ना है, ट्राइबल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी, इस पर हमारा ज़्यादा कंसर्न है। और ट्राइबल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी में हम लोगों को कंपैरेटिव फ्रेमवर्क में पढ़ना है मॉडर्न सोसाइटी, लेकिन फोकस हमारा ट्राइबल सोसाइटी है। और ट्राइबल सोसाइटी आर नॉट होमोजीनियस। ट्राइबल सोसाइटी में भी हंटिंग ट्राइब, शिफ्टिंग कल्टीवेटर एंड एग्रीकल्चरिस्ट, जो भी एडवांस ट्राइबल हैं जैसे मीना, भील हो गया, मुंडा, भील, मीना, संथाल, ये सब डेवलप ट्राइबल हैं, एडवांस। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा आपको हंटिंग ट्राइब, आप क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो सबसे ज़्यादा आप 81 से देखें तो 81 में, 98 में और इवन 2018 में क्वेश्चन जो आएगा
सो ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपको हंटिंग टैवल पर। हम 20 वाला आपको इधर आप जो क्वेश्चन देखोगे 2017-18 में भी आया है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हंटिंग टैवल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हंटिंग टैवल आया है। तो इसके साथ साथ पीटीजी ट्राइबल पर क्वेश्चन, हंटिंग ट्राइबल मोस्टली पीटीजी हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप इनको कहा जाता है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। और अब इनका नाम और चेंज कर दिया गया है ट्राइबल ग्रुप, अब इनको पीबीटीजी कहा जाता है। पहले इनको पीटीजी कहा जाता था, अब इनको पीबीटी। अब इस पर क्वेश्चन देखोगे 1914 में भी आया है, ये 17 में भी आया है। तो एक क्वेश्चन बार बार इस सब पर आता रहता है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप पर। यानी फोकस ऑलवेज आप, हम जनरल बात करते हैं और जनरल से फिर हम धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन की ओर आते हैं। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने पहले कहा कि एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब ट्राइबल सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी हम सबका अध्ययन करते हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है, प्रीफरेंस है, वो ट्राइबल सोसाइटी है। एंथ्रोपोलॉजी इज मोर कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज। प्रीफरेंस की बात हम कर रहे हैं। बी स्टडीज ऑल सोसाइटीज, बी बेक एक कॉम्पिटिटिव स्टडी, हम आपको आगे ये सब क्लियर करेंगे और है ना। लेकिन आप एंथ्रोपोलॉजी इसलिए इजी है कि हमारा जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो सिर्फ ट्राइबल हैं, और ट्राइबल में भी जो हमारा ज़्यादा जिसको ज़्यादा हम स्टडी करते हैं वो हंटिंग ट्राइबल हैं, जो जंगल में रहते हैं, शिकार करते हैं। अब शिकार तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट आने कारण है ना, फूड गैदरिंग करते ज़्यादा हैं। तो ये हंटिंग ट्राइबल जो सिंपल ट्राइबल हैं, हमारा यूनिट ऑफ स्टडी सिंपल ट्राइबल है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी रिलेटिवली इजी है और स्कोरिंग है, क्योंकि उनमें चेंज डायमेंशन हम नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लड़के आएंगे कि सर चेंज एंथ्रोपोलॉजी पे जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा स्टैटिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि चेंज डायमेंशन में हम स्टडी नहीं करते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और जो अदर डिसिप्लिन है, चेंज डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर। डे बाय डे चेंजेस आर कमिंग इन दो डिसिप्लिन। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, जैसे अभी हमने बताया प्री हिस्ट्री, जो आर्कियोलॉजिकल टूल्स है, दे आर मेड बाई ह्यूमन एंसेस्टर, और वो बन गए तो बन गए, अब उसमें चेंज की बात नहीं है। तो एक्चुअली फोसिल, प्राइमेट और आपको मैंने आर्कियोलॉजी बताया, ये टॉपिक स्टैटिक टॉपिक हैं। इवन ट्राइबल की जो बात करते हैं उसमें भी डायनेमिक मॉडल एंथ्रोपोलॉजी का वीक है। मतलब हम ट्राइबल को उसी रूप में पढ़ते हैं जिस रूप में दे आर फॉर सेंचुरीज। हमारे जो हंटिंग ट्राइबल हैं वो उसी रूप में हैं और हम उसी रूप में पढ़ते हैं। अब इसके शॉर्ट कमिंग भी हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट को लोग ब्लेम भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं कि आप ट्राइबल को, जैसे इल्विन को लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप चाहते हैं उसको कि जिस ट्राइबल आर म्यूजियम एनिमल्स, आप उसी रूप में उसको पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हम कंजर्वेटिव हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। बी स्टडी ट्राइबल एज दे आर। चेंज डायमेंशन एंथ्रोपोलॉजी का वीक है, और ये आपके लिए यू स्टूडेंट हैव एडवांटेज बिकॉज टॉपिक बिकम स्कोरिंग। So these are social topic, and social topic are a bit easier, however not so scoring as those objective topic already I suggested to you. Now I come on cultural aspect of man. Culture is very broad concept in anthropology. Already I told you that central concern is culture, है ना। एंथ्रोपोलॉजी में ये 5 हैं, ये बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अगर हम 5 में 3 को ये करें तो 5 में 3 में बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल,
इकोनॉमी पॉलिटी को हम थोड़ा लेस ये कर सकते हैं, अगर दो कहा जाए तो बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, और अगर सेंट्रल कंसर्न एंथ्रोपोलॉजी का कहें तो कल्चर है। तो ये कल्चर एस्पेक्ट ऑफ मैन एंथ्रोपोलॉजी फोकस जो है एंथ्रोपोलॉजी में स्टडीज कल्चर एज सेंट्रल कंसेप्ट। सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट अगर एक कहा जाए एंथ्रोपोलॉजी में तो वो है कल्चर। देखिए अदर्स के लिए सब्जेक्ट हैं, जैसे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए टॉपिक है जूलॉजी सब्जेक्ट है, सोशोलॉजी है सोशल एस्पेक्ट के लिए, इकोनॉमिक्स आप जानते होंगे कि एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स, और पॉलिटिकल साइंस एक ब्रांच है। लेकिन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कल्चर को फोकस मान के किया जाता है? ये कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फोकस इज ऑन कल्चर? और वो सब्जेक्ट जिसमें कल्चर फोकस है वो है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट का जो फोकस है वो कल्चर है। इस तरह से अगर आप प्रीवियस जो क्लासेस मैंने लिया और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी इज अबाउट मैन। एंथ्रोपोलॉजी में केवल एक कंसर्न नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी की बात अगर करें तो इज अबाउट मैन, अबाउट ट्राइब। अभी मैंने कहा कि ट्राइबल हमारा फोकस है, अबाउट ट्राइब एंड अबाउट कल्चर एंड अबाउट कल्चर। अगर ये तीन पहचान एंथ्रोपोलॉजी का है, एंथ्रोपोलॉजी अबाउट मैन, एंथ्रोपोलॉजी अबाउट ट्राइब एंड एंथ्रोपोलॉजी अबाउट कल्चर। जैसे हिंदू मैरिड का पहचान क्या है? हिंदू मैरिड का पहचान है सिंदूर, बैंगल और मंगलसूत्र। सिंदूर अगर कोई लगाती है तो आप समझ जाते हो कि ये मैरिड वुमेन है। अनमैरिड और मैरिड में सबसे जो आइडेंटिफाइंग फीचर है वो सिंदूर, और दूसरा है बैंगल तो सभी लड़कियां पहनती हैं, तो दूसरा फीचर है मंगलसूत्र। ये थ्री जो है ये आइडेंटिफाइंग फीचर है। उसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी का जो आइडेंटिफाइंग फीचर है एंथ्रोपोलॉजी अबाउट मैन, एंथ्रोपोलॉजी अबाउट ट्राइब, मतलब मैन में भी हमारा जो मैन आर डिफरेंट टाइप्स, मॉडर्न पीपुल हैं, ट्राइबल पीपुल हैं, तो फोकस हमारा ट्राइबल पीपुल पर है। और तीसरा जो कंसर्न एंथ्रोपोलॉजी का है वो है कल्चर। कल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जैसे मैंने कहा कि दे इज ए डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी ऑफ कल्चर, और वो डिसिप्लिन एंथ्रोपोलॉजी है। एंथ्रोपोलॉजी में सेंट्रल फोकस कल्चर है। अब कल्चर क्या है? कल्चर इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। कल्चर मैंने कल भी बताया कि मोर देन 300 डिफिनेशंस है, और इस पर हम मोर देन 8 आवर्स क्लासेस लेंगे। लेकिन सिंपली स्पीकिंग आप ये जान लो, कल्चर इज अबाउट हाउ वी लिव। अगर हम एक शब्द में, कल्चर हमारा जीने का तरीका है। कल्चर एस्पेक्ट ऑफ मैन हम पढ़ते हैं, ये कल्चर इज अबाउट हाउ वी लिव। पहले ही मैं बताया कि कल्चर इज अबाउट ह्यूमन। जानवरों में नहीं होता है, ये एनिमल का फीचर नहीं है कल्चर। कल्चर इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल। द ओनली डिस्टिंग्विश फीचर between man and culture is, man and animal, is that man has culture, animal does not have culture. So culture is a human trait. Culture is about human, है ना? Culture is about how we live, is about how we live. अब इसमें हम live में कर दें how we eat, how we play,
जितना भी काम करते हो ये सब कल्चर, हम कल्चर के अनुसार करते हैं। जैसे क्या खाना है, व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, ये किस पर डिपेंड करता है, हु विच डिसाइड व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट टू ईट, कल्चर डिसाइड करता है। जैसे हिंदूज हैं गाय का मांस नहीं खाते हैं, मुस्लिम खाते हैं, मुस्लिम कल्चर लॉज ईटिंग बीफ, बट हिंदू इन हिंदू बीफ ईटिंग ये टेबू। क्या खाना है नहीं खाना है ये कल्चर डिसाइड करता है। आप देखेंगे इन पीपुल इंडिया में अलग रीजन के लोग अलग अलग उनका फूड हैबिट है, अलग अलग उनके कल्चरल तरीका है खाने पीने का। ये कल्चर डिसाइड करता है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। यहां तक कि खेलने का भी नियम है। आप क्रिकेट में देखते हैं रूल्स हैं, तो रूल्स आर एवरीवेयर। कल्चर कैसे हम जीते हैं, जो रूल्स है, जैसे हाउ टू राइट, आप कह ले हाउ टू राइट, आप लोग सब लिख रहे हो, व्हाट इज कॉमन, राइटिंग इज ए बिहेवियर, राइटिंग इज बिहेवियर, लेकिन जो बिहेवियर के पीछे रूल है वो कल्चर है। यू ऑल पीपुल आर राइटिंग, लेकिन आपको लिखने के द रूल बिहाइंड राइटिंग, जो ग्रामेटिकल रूल्स है इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग नॉन इंग्लिश, बट द रूल्स बिहाइंड बिहेवियर इज कल्चर। तो हर बिहेवियर के पीछे जो रूल्स है, जो सिंपल एग्जांपल दिया आपको कि खाते हैं आप, तो खाने के भी पीछे रूल्स है, क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ऑल थिंग कल्चर डिसाइड करता है। द रूल बिहाइंड योर बिहेवियर वो कल्चर है, उसी को हम कल्चर कहते हैं। सिंपली स्पीकिंग कल्चर हमारा वे ऑफ लाइफ है। कल्चर इज आवर वे ऑफ लाइफ, डिजाइन ऑफ लिविंग, आवर वे ऑफ लाइफ। ये हमारा जीने का रास्ता है, जीने का ढंग है। तो ये चीजें हम और आगे जब कल्चर पढ़ाएंगे, कल भी मैंने बताया था कि कल्चर के तहत रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सब कल्चर के पार्ट्स हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आप जनरल टर्म यूज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक हार्मोनियस अरेंजमेंट। जैसे इसमें डीएम भी हैं, एसपी भी हैं, डीएसपी भी हैं, एसडीएम भी हैं, इसमें बीडीओ भी हैं। ये सब का हार्मोनियस अरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। ये हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल्स टू परफॉर्म या टू मेंटेन लाइन ऑर्डर या और इश्यूज जो हैं उसके लिए। तो हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ ऑफिशियल गिव द शेप ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह से कल्चर है, कल्चर के तहत कल्चर इज आल्सो ए जनरल टर्म। कल्चर में आपको रिलीजन भी है, कल्चर में लॉ भी है, कल्चर में कस्टम भी है, कल्चर में टेबू भी है, ट्रेडिशन भी है। ये सबका जो मिला हुआ रूप है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, ये सबको एक हार्मोनियस, जैसे माला गुथा हुआ होता है, उसी तरह से हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ दीज एलिमेंट्स, उसको हम कल्चर वर्ड यूज करते हैं। जैसे प्रशासन, प्रशासन इज ए कन्फिगरेशन ऑफ ऑल दीज ऑफिशियल्स, एक हार्मोनियस अरेंजमेंट ऑफ ऑल दीज ऑफिशियल्स, इसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। उसी तरह से कल्चर है, कल्चर इज ए अम्ब्रेला टर्म, इज ए जनरल टर्म अंडर विच ऑल थिंग आर कम, रिलीजन, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सबका जो हार्मोनियस अरेंजमेंट है उसी को हम कल्चर कहते हैं। कल्चर में लॉ भी है, कल्चर में रिलीजन भी है। हिंदू रिलीजन अलग चीज है, इंडियन कल्चर अलग चीज है। कल्चर के अंदर रिलीजन के अलावे और क्या है, लॉ भी है। कल्चर में सैक्रेड भी है, कल्चर में सेक्युलर भी है।
कल्चर इज ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। पूरे थिंकर्स, जो भी थॉट पढ़ना है, सभी थिंकर्स का कंसर्न है कल्चर। सबने दे हैव एक्सप्लेन कल्चर इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। थिंकर्स जो टॉपिक्स है, इस पर मेरा यूट्यूब पर एक वीडियो है, मैंने उसमें बताया है कि कल्चर को 5 पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है। थॉट में 5 पर्सपेक्टिव हैं। एक पर्सपेक्टिव है सभी थिंकर हैव देयर ओन ओपिनियन व्हाट कल्चर इज। तो ये आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो, पहले का वीडियो है। चलिए अब हमारे हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन। तो सिलेबस में आपको इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन के लिए भी है ना, मानव का इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ मैन। इसमें हम 3 चीज पढ़ते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सब कंजम्पशन। देखिए हमारा कंसर्न एंथ्रोपोलॉजी में ज़्यादा ट्राइबल पर है, इसलिए ट्राइबल में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जैसे हंटिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और एक्सचेंज का आपको ट्राइबल में ही जो एक्सचेंज है, हम उसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है, गिफ्ट एक्सचेंज। वाटर, वाटर हुआ क्या मतलब? वाटर का मतलब है कि एक सामान, जैसे बिरहोर के पास वहाँ मनी इकोनॉमी नहीं है, नो यूज ऑफ मनी, तो वो लोग क्या है, एक सामान देता है। जैसे बिरहोर ट्राइबल है तो बिरहोर रोप मेकर है, बिरहोर इज ए रोप मेकर, तो ये ओरांव को रोप देता है, ओरांव जो ट्राइबल है उसको, और ओरांव खेतियर है तो ओरांव बिरहोर को राइस देता है। तो एक्सचेंज ऑफ गुड ऑफ फॉर गुड विदाउट एनी यूज ऑफ डिनोमीटर मनी, उसको हम बोलते हैं वाटर। तो एक्चुअली आपको सिलेबस में जो इकोनॉमिक इश्यूज दिए गए हैं, फोकस हमारा उसमें ट्राइबल इकोनॉमी पर है। और ट्राइबल इकोनॉमी में जो 3 प्रोसेस हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, आपको इसमें जो अभी हमने बताया कि इसमें हंटिंग जो प्रोसेस है, हंटिंग, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, और एक और है पास्टोरलिज्म, और भी है पास्टोरलिज्म के अलावे आर्टिसन। तो दीज आर द प्रोडक्शन प्रोसेस है वहाँ, लेकिन हमारा उसमें भी ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोसेस किसका है, तो हमारा फोकस हंटिंग ट्राइबल पर ज़्यादा होता है। उसी तरह से एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन में भी हमारा फोकस स्टेटलेस ट्राइबल पर ज़्यादा है, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में ज़्यादा है। सिलेबस में आपको स्टेटलेस पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन में पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन में हम लोग ट्राइबल का जो सिस्टम है, स्टेटलेस सिस्टम, ट्राइबल में जो सिस्टम है उसको बोलते हैं स्टेटलेस सिस्टम। उसमें और हमारा जो सिस्टम है वो स्टेट सिस्टम है, एक सेंट्रल अथॉरिटी होता है स्टेट सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, इस तरह का ऑर्गेनाइज जो सिस्टम है वो ट्राइबल में नहीं होता है। यहाँ सेंट्रल अथॉरिटी होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पीएम, एक तरह से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पीएम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट, जो मोनार्कियल है उसमें किंग, और जो चीफडम है, जैसे हमारे खासी जो सोसाइटी है ट्राइबल का, वहाँ चीफडम है, तो स्टेट सिस्टम है। लेकिन ट्राइबल में स्टेटलेस सिस्टम में यहाँ जो विलेज हेडमैन का कंसेप्ट होता है, हमारे जो ट्राइबल विलेज हैं, तो ट्राइबल विलेज में हर जगह काउंसिल होता है, विलेज काउंसिल। तो ये जो काउंसिल है उसमें जो एल्डर्स हैं, काउंसिल विलेज हेडमैन, तो यहाँ हेडमैन होते हैं, और हेडमैन के साथ साथ ये जो एल्डर्स हैं, एल्डर्स जो होते हैं वो इस काउंसिल के एल्डर्स ऑफ द विलेज, जितने भी एल्डर्स हैं, एल्डर्स ऑफ द विलेज, ये इसके मेंबर होते हैं। तो ट्रेडिशनल लॉ है वहाँ, ट्राइबल सोसाइटी इज रन बाय ट्रेडिशनल, ये कस्टमरी रूल,
उनका ओन अपना कस्टमरी रूल है और ट्राइबल सोसाइटी अपने कस्टमरी रूल के अनुसार वहां लॉ एंड ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर के बदले हम पीस एंड हार्मोनी बनाए रखता है। तो इन सब चीजों को हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। ये सब का डिटेलिंग आपको बाद के क्लासेस में होगा। मैंने ज़्यादा इस फोकस किया बायोलॉजिकल इश्यूज पर, इसलिए कि वो बच्चे, वो तो स्कोरिंग पार्ट है भी, ये सब टॉपिक थोड़ा रिलेटिवली आसान है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि आपको प्री हिस्ट्री और जो फिजिकल है वो ज़्यादा स्कोरिंग है। इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी का एप्लीकेशन भी है ना। अप्लाइड एस्पेक्ट में एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज है ना, यूज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, और यूज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज में नॉलेज के लिए इसके दो ब्रांचेज हैं। एक है अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी और दूसरा है एक्शन एंथ्रोपोलॉजी। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्रशासन को, यहाँ जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो खुद नहीं बल्कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को सलाह देते हैं। लोगों के लिए जो डेवलपमेंट प्लान बनाना है उसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट सजेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर को सलाह देते हैं कि लोगों की योजना जो बना रहे हैं उनके कल्चर को ध्यान में बनाएं। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में ऐसी बात नहीं है। एक्शन एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये लोगों के लिए खुद प्लान बनाते हैं। जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट देमसेल्फ मेक एंड इंप्लीमेंट द प्लान। सबसे पहले सोल्टेक्स ने, फॉक्स इंडियन अमेरिकी जो ट्राइबल है, सोल्टेक्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की। उन्होंने फॉक्स इंडियन ट्राइबल है, हंटिंग ट्राइबल, फॉक्स इंडियन एक अमेरिकन इंडियन है, उसके लिए प्लान बनाया और उसको इंप्लीमेंट किया। तो अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, ये दो ब्रांचेज हैं जिसमें एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ पीपल। या बहुत सारी चीज़ों में मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी, ये सारे ब्रांच हैं जिसमें हम ट्राइबल के लिए उनमें जो कंसेप्ट डिजीज का है एंड उनके कंसेप्ट, उनका जो ट्रीटमेंट, ये सब को ध्यान में रख के उनके लिए हम पॉलिसी प्लानिंग करते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया। आई हैव गिवन यू द ओवरव्यू ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ये सब का डिटेलिंग, यह केवल शुरुआत है, ये टेलर है। जैसे आगे क्या क्या पढ़ना है उसका एक टेलर है। कल नेक्स्ट क्लासेस से हम मेथड और पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। इसके बाद हम जनरल टॉपिक पर आएंगे जहां टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन कराते चलेंगे। ऐसे अभी भी मेरा जो फोकस था वो क्वेश्चन पर ही ज़्यादा रहता है। अभी भी आपको सिलेबस का मैंने ओवरव्यू दिया, खास करके फिजिकल को हमने पूरी तरह से आपको बताया कि किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सोशल टॉपिक, मैरिज, फैमिली, किनशिप को मैंने उतना, चूँकि दीज आर रिलेटिवली इजी टॉपिक और वो बिल्कुल वी आर फैमिलियर विद दी टॉपिक्स, तो वो टॉपिक उतना प्रिमिटिव नहीं है। लेकिन ये भी जान लें कि वो उतने स्कोरी नहीं हैं। लड़के खुश तो रहते हैं कि हाँ हम मैरिज, फैमिली, किनशिप, एंथ्रोपोलॉजी में तो कुछ है नहीं, और वो वही तक रहते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं, है ना। वो डिफिकल्ट जो टॉपिक है वो डिफिकल्ट टॉपिक की ओर ध्यान नहीं देते हैं और परिणाम स्वरूप अंततः उनको चांस गिनना पड़ता है। जब तक आप वो टफ, जब तक जो स्कोरिंग टॉपिक आप नहीं करेंगे शायद नंबर उस लेवल तक नहीं आ पाएगा। आप 300 के राउंड या नंबर लाना चाहते हैं तो आपको देखिए, फिजिकल आपको फर्स्ट पेपर में भी है, सेकंड फोसिल्स फर्स्ट पेपर में भी है 1.5 में, और सेकंड पेपर में
1.2 में है, इसलिए फिजिकल आर्कियोलॉजी भी फर्स्ट पेपर में भी है और सेकंड में। सो एंथ्रोपोलॉजी वेरी स्कोरिंग, केवल स्ट्रेटेजिकली आपको डिसाइड करना है आंसर लिखते समय कि वो स्कोरिंग जो पोर्शन है उससे क्वेश्चन आप जरूर करें। वो सब क्वेश्चन टच करते हैं आप तो निश्चित रूप से आपको अंक अच्छे आएंगे। आप 300 के अराउंड का मतलब है कि आपको ज्यादा भी आ सकता है, नियर अबाउट भी आ सकता है, तो ये स्ट्रेटजी के अनुसार आपका डिसाइड करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको मेथड और पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे, इसके बाद उस साथ हम गोल भी बता देंगे और उसके बाद फिर हम जनरल टॉपिक में, तो कल तक ये टॉपिक चलेगा। देखिए आपको उतना आज का टॉपिक उतना आपको थोड़ा नीरस लगेगा, बात अगर आपको ये आपको देखने के लिए क्लासेस नहीं करना है कि अच्छा देखते हैं, हम फाउंडेशनल क्लासेस हैं ये, इसमें आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा जितना कि आगे एक टॉपिक में आएगा, जैसे मैरिज फैमिली, किसी को लगेगा कि अरे बहुत अच्छा पढ़ा है। तो ये केवल हम इसके लिए नहीं करें कि हाँ आप जज करें इस आधार पर कि हाँ ये तो उतना, ये टॉपिक फाउंडेशनल क्लासेस है, ये एंथ्रोपोलॉजी के बैकग्राउंड बनाने के लिए है। और इसके बाद के जो क्लासेस दैट वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एंड दैट इज यू विल फाइंड कि वो टॉपिक ज़्यादा फैमिलियर था और उसमें कंसेप्ट ज़्यादा, बहुत सारे मैंने कल ही बताया था कि बहुत सारे कोचिंग मैरिज फैमिली शुरू कर देता है, वो उनका उद्देश्य केवल दे वांट एडमिशन इंस्टीट्यूट और वो लड़का को फर्स्ट में फील गुड एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। बट आई लाइक यू टू प्रिपेयर लाइक ए सोल्जर and from the very beginning you prepared to tackle tough topics, because यही टॉपिक जो है, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स है, वही टॉपिक आपको ज़्यादा स्कोर कराएगा और आपको वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ जिसके लिए आप यू आर ड्रीम देख रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं। थैंक्स। तो नेक्स्ट क्लासेस would be on method and perspective.